So start with any one of you if interested to elaborate this. What is the difference between or a difference among these terminology? Anyone who want to take charge? Yes, AI is what? Artificial intelligence. Any one of you? See, it's a class, but it is not a class like I am, pressurizing do like this or theoretical part. You have to. We will discuss and we'll see what will the output after this lecture. After this session, you will 100% sure you will understand what is regression, how to calculate least square formula. Using least square, you can calculate regression. Okay, after this session. But yes, normal terminology like artificial intelligence, machine learning, deep learning. So, what do you think? At least, what is in your mind when somebody is saying that yes, AI, artificial intelligence means? So, what is your thinking regarding this? So, who will start? Rahul, Rahul Arora, are you want to start? What do you think? What is AI? It's a very simple. Define artificial intelligence if you know. Any other? Ayushi, Ayushi, no. Yeah, okay. So what is the problem? Are you not getting the question or you are not able to listen or not audible? What is the problem? Are you know what is AI or you are not getting what is the question? Ayushi, are you there? Gibran, are you there? Siddhant, Ankit, you are very few in numbers, so very countable. Neelam, are you there? Yes, sir. Who is? Ayushi, beta, batao. Say human as the human intelligence, the machine intelligence or artificial intelligence, the way machine do work, we can say. So it's okay, the way the machine do the work, but if somebody want to know that what is AI, what is ML, what is deep learning, because some words, some statements are like replacing each other. So machine learning is when we say machine learning, when we use AI, when we use deep learning, because everybody is saying something. Yes, machine learning is working and deep learning is, I am using deep learning, I am using AI. So you have a concrete decision, or you have concrete line to actually separate this AI and machine learning or deep learning. Yes. Let's better try. Otherwise, I will tell you. See, each and everybody knows it's a very easy that yes, AI is a broad concept. Artificial intelligence is a broad concept. Okay, like making things smart. If you say yes, this is smart, this machine is smart, this object is smart. So making things smart, or in other words,
human task performed by machine. Like take example, visual recognition. Okay, or we another example we can say text to voice, or we can say text to audio, or text to visual conversion. So these are the what? These are human tasks performed by the machine. See, take a pen or a paper or a copy and write these words, okay? Because it's very important to differentiate, to separate the concept, okay? So the main point in AI is not exactly machine learning or smart things. It can be a classic program installed in your machine, okay? So machine learning, AI is a what? AI is a broad concept. It makes, it gives machine to behave like a human. It gives that work like some intelligence should be there. If machine is working any task, but there is intelligence, there is some routine work which we can say yes it is smart, then it is a broad concept and it is AI, artificial intelligence. Okay, another approach, machine learning. So machine learning is not a broad concept, it is a subset of AI, we can say it is an approach. Okay, it is an approach that makes capable of learning from experience. So this main line is what? Main differentiation is what? Learning from experience. Okay, AI says learn something or perform something. Okay, but machine learning says perform and learn, but from experience. So machine has to behave, but with some data. There should be some feedback, or where there should be some data set, and from that data set, machine learns. So machine is infusing. Machine is uh, giving some data or giving some experience to learn and behave according to them. Okay, so like if we say copying human behavior, so copying human behavior is only AI goal. It says AI. Okay, but if you want to reduce the efforts and time spent, or we can say both simple and difficult task, like stock price prediction. So predicting stock price, it is different. It is not just only copying human behavior. It is much more. So it comes machine learning. So we are what? We are predicting. But how we are going to predict? Machine is learned from experience that yes, stock price should be based on the previous data. So it is machine learning. Just copying human behavior is AI. Okay. So it is a broad concept. AI is a broad concept. Artificial intelligence is a broad concept. And machine learning is an approach which says yes, learning from experience. The main point is learning from experience. Got it? Response me. Hello. You can write in chat box also. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Good. Another is what? Another term was deep learning. Another term was deep learning. Each and every day you somebody says yes, I'm using deep learning, deep learning, deep learning. What is this deep learning? AI is, sir is saying yes, Prem sir is saying artificial intelligence is a broad concept. Okay, machine learning is an approach which says yes, learning from experience. Good. But what is the next? Deep learning. Actually, it is a set of techniques for implementing machine learning that recognize pattern of patterns. Clear? Set of techniques for implementing
or for giving or providing platform for machine to learn. So backing up or giving facilities or giving techniques or approaches or algorithms to machine learning that learn from experience. So it is helping machine learning that work or the project should be done efficiently, like image recognition, face recognition. Okay, so pattern is what it is. A you have in database some patterns are there. You are finding any specific pattern which is maybe in your database or may not be. Suppose you want to find or recognize specific person face from database that is maintained by you. So situation can be that yes, that specific one face sample will be in your data or may not be in your data. Okay, so this is more concise, this is more deeper that we are discussing on set of techniques. So my emphasis, my pressure is on which word? Set of techniques. It is not, I'm telling not a simple approach. I'm not simply saying it's a broad concept. Okay, so AI is a broad concept, machine learning is an approach, and deep learning is a set of technique. Machine learning specifies, yes, it's a specific that it is learning from experience. It is just not coding, giving for 0 you are saying no, for 1 it is printing yes. No, it is just not like that. It is much more that it learns from experience automatically by itself. So machine learning. And if we say we discuss on set of techniques that are what for, they are for implementing machine learning. That is deep learning. There is human mind, there is neural network concept involved. Each and every model, each and everything is uh, as is seen like a neural network. Consider as a like a neural network. Neural network means it is tendency or behavior of human mind, like human thinking. Deep human thinking is developed in machine using the techniques, that is deep learning. Okay, so neural network will be there, but not exactly if they say is this a deep neural network. No, not just deep neural network says deep learning. It says all the technique, all related technique which is for implementing machine learning. But specific part is also, yes, human mind behavior, human mind thinking. Okay, so it is deep learning. So it's a overview that AI is an, we can say AI is a broad concept and machine learning is an approach and deep learning is a set of technique. Okay, you go and see the number of definitions will you can find one net, but you have to define or explain through some examples so that it can be easy and very efficient, or very separating line. You can create, you can scratch a line, you can draw a line among these three. AI is this, machine learning is this, and DL is this, deep learning is this. Okay, so now after machine learning, AI, and deep learning, there are some more points, more general views that saying number of terminologies like what is regression, classification, clustering. So write down point wise. First is regression. Okay, first is regression, second is classification, third is clustering. Okay, third is clustering. I am again repeating. First is regression, classification second, third clustering, fourth recommendation. Fourth is recommendation.
Then dimensionality reduction or generalization. We can say another word, that generalization, dimensionality reduction or generalization. What is first? Regression. Second, classification. Third, clustering. Fourth, recommendation. And next is generalization. Are you getting all this? Okay. Write in chat box whether you are you getting or not. Write all persons. Just take few seconds. Write yes or no. You are never about 19. Neela, Manshika, Shivam. Okay, great. Fast, fast. Do it fast. So I can understand how many of you are getting this. Katyayani, Avinash, Prince. Okay, good. Siddhant, Ankit, very good. So, see, what is regression? Regression, last turn, I described that it is a prediction. It is a prediction. A task of predicting the next value based on the previous value. Okay. Predicting the next value based on the previous value. So basically prediction is regression. Regression is prediction. Okay. See, I am going to share a screen showing you that example that we have discussed previously, but maybe some network problem, it was not clearly discussed, I think. So I'm going to share a screen, and in chat box you have to write just you are, this screen is visible or not. Okay. So this is where it is. Screen, stop. Yes, good. So first I am to see in chat box. Yes. So screen is visible. Visible. Akash, are you there? Okay, okay. So I think it is visible to all of you. Good. Good. So which screen is you? What is in front of you? It is regression. There is a raw material product sale, like there is a XY plane. So are you getting this? Are you seeing this? Number three. Number three. Yes, regression. Good. So chart is there. There is a plot plane product sale raw plane is visible. Number three. Good. Very good. Because when I take this PPT on full size, full screen, at that time your chat box is not displayed. So it is very difficult to know me whether you are getting or not. So Divya Devi raised your hand. बेटा क्या प्रॉब्लम है दिव्या दिव्या as you raise your hand no Divya. Good. So
Like regression is what we have discussed, that it is a prediction. I have taken an example that there is a product sale, and another x-axis says what? X-axis shows raw material, raw material. Y-axis shows product sale. So what is your product sale? We are predicting in regression, we are going to predict product sale based on the previous raw material data. Experience is what? We have raw material data. Data means we have calculation that yes, on these parameters, whether the raw material is used in quantity or the quality of raw material is good, in number of parameters. Like if you want take any example of product, suppose you have making something, making glass. So for glass, which type of chemical or which type of raw material is need, in which amount you need, the price of the parameter used you are considering. So it is like this. Okay, an easy example you can consider, yes, there is a house, type of house. On the place of this raw material you can write house, type of house. Okay, your villas, you can say only uh, land is there, only houses are there, the villas are there. So like the house you can assume over x-axis, and the rate or house price based on their type. So maybe the type of house, their house price you can adjust, or you can say there are 3 bedroom, 2 bedroom. So likewise, if you assume it, I am giving another example. Okay, don't confuse with this, because it will be very easy for you to connect with this. Okay, so likewise, if you are going to purchase house, you see 2 bedroom, 3 bedroom, or one setter, and according to their price. Another important parameter is what location you are going to purchase your house or villa. Okay, another is the airport is near about, or the railway station is how much far there, and the hospital from there. So location you are observing. If it is in prime location, the price of houses or villas will be very large, very huge. Getting? So it is the previous experience. It there exception may be there. Okay, exceptions may be there. Yes, there will be some condition on that some person is going to sell their house and their situation is not good at that time. Maybe the price of that house is low, but that is exception. Okay. Similarly, we have raw material to to make any product. So raw material is just not a raw material. It is like what weather is going on. In that weather, this material is available or not. The price of at that time, the supply chain is good or not. The transportation is clear at that time or not. So lot of parameters are related, and based on those parameters, the price or the product sale. In this case, we are like this button or this point is showing what? Based on this raw material value, this the product sale is showing here. I have not taken any value like 30 or 40. I'm just showing that these are these points or these buttons are showing the product sale. In sub point it is low, at some another point it is high, product sale is high. Okay, so likewise you can see these are data. These are what? These are data available you for predicting next value. But before that, what is a regression? Another definition of regression is to draw a line. Listen very carefully. Regression is what? Draw a perfect line. Draw a perfect line.
in this figure, if you are getting this figure, if you are not getting, just stop me, raise your hand, write in chat box so I can see yes it is clear or not. Sorry, this screen. Screen is visible to all. आपका चैट बॉक्स मुझे नहीं दिख रहा है तो कोई एक मुझे बोल के बता दो whether you are getting this or not. Neelam, Abhyuday, anyone. Yes, sir. So screen is there and the metal cell and raw material plain you are getting. Yes. Then okay. Then okay. So what the point I am saying? First, I told you that regression is what? It's a prediction. Another definition, what I am telling, this is to finding a line or drawing a line which should be what? Perfect. So drawing a perfect line. Draw a line which fits all the values or the data available. So we have a first data, this value is much more than this point or lower than this point. This point has value which is lower than that, but with respect to this point it is higher. Okay, likewise other points are there. So what you have to do, you have to draw a line which is what, which should be near to all. We can draw number of lines, but the final line should be like that, which should near to all the points. Okay, so some person says only the difference between the line point and the given point or button or the value we should consider. Some are getting that, take the difference and find the square and sum them. So number of methods are there. What we are going to, we are first finding the difference between the line point and the this given point, find the difference and calculate the square of this difference. Then this square, this difference square, this difference square. So all the differences and then square them and then sum to all squares. This is what you have to find, difference between the point, given input point and the line point. So similarly, find all the differences and then square them individually and sum them. Add all those squares. And if you have draw a line, you can draw number of lines, but you have to select that line which should be minimum in term of the calculated amount. What you have calculated, you have find the difference of the individual points, then square them, then sum of them. So for one line it is something, for another line it will be something else. So for number of lines you can calculate like this formula. Okay, so what line you have to select, for which line the sum of difference square is minimum, that line is, you have to select. That line gives you perfect prediction. This drawing a line gives actually what, perfect prediction, near about accurate prediction. So regression is a prediction, but in this method we are finding a line which helps to predict accurately. So this is one method to implement regression to prediction. Okay, again I have as we are discussing what, for line. So line equation is what, it is y equal to ax plus b, or we have written here y equal to a1 plus a2 into x. Clear? So it is a line equation. Is it clear? It is line equation, y equal to ax plus b.
y equal to mx plus c. Similarly, so x is independent variable. X are what? These values are x. These are not dependent to. You have to put x and calculate what? Y. So y is independent and x is dependent. So what you have on, if we say you have previous data, that means you have x, raw material is x, and product sale y is this. So you have number of x, y, number of x, y. So suppose here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 points are there. So that means 10 data is there. 10 x y is there, x1 y1 x2 y2. So y is there, x is there, but we have not a1 and a2. So what we have to do, we have to find out a1 and a2. Like a1 a2 should be like that, that each and every condition it should give this minimum, this minimum. So our task is what? Regression is what? Regression is a prediction for what? It is helping machine learning to predicting something. Okay, based on the it is what regression is doing. What it is giving machine to learn something based on the experience. Okay, machine will learn based on the previous data. Okay, so regression one of the medium to give learning to machine. So one method is like you have data, 10 points are there. You can see we have 10 points. Sorry, this. Okay, so x is there, y is there, previous data is there. What you have to do, you have to predict it for next value, for next x, which is now just to become. For that new value you have to predict product sale. So machine is learning what? There are all the data for the raw material, product sale is there, for the raw material, product sale is there. Okay, but for new raw material which is just coming, want to just after a few days it is coming in the market, and then you want to know what will be, what should be the product sale. The machine learns, yes, for this new data, for this new raw material, product sale should be this. So you are what? You are predicting. So regression is doing this, machine learning is performing actually. Understand? It is very fine line to understand this regression is what? This is actually going to be a machine learning concept. So predicting or fitting a line, drawing a perfect line, that is actually machine learning concept. So regression is for what? It is machine learning. Understand? If you have any doubt, clear it at the right time. Otherwise, it will be very difficult to for you. Okay. So in chat box you can write that you have any doubt or any question, any query, because otherwise I will ask and you will be quite keep quiet. That will not be acceptable. So try to make it interactive. So be interactive. सीधा सीधा बोरिंग बोरिंग लेक्चर ना लगे, आपको समझ में आना चाहिए कि मशीन लर्निंग है और मशीन लर्निंग इतनी आसानी से एक y इक्वल टू ax प्लस b लाइन से मशीन लर्निंग हो रही है. What you are doing, you have a data and that data is for what? ये ऐसा एक्सपीरियंस पे है कि आपके पास नंबर ऑफ हाउसेस हैं या टाइप ऑफ हाउसेस हैं और आपको हाउस सेल का पता लगाना है, बट किस तरह का? जो नया हाउस बना हुआ जिसके बारे में अभी कुछ भी डिसीजन नहीं है. किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस टाइप ऑफ हाउसेस, एरिया वाइज हाउसेस आपके पास हैं. सपोज 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 1 बेडरूम आपके पास किसी एक ही एरिया में जिसके पास में प्राइम लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है, और वहीं पे एक आपका ये कुछ प्लाट्स हैं, कुछ आपके हाउसेस हैं. हम प्लाट और हाउस और इसमें नहीं डिफरेंशिएट करें ताकि कंफ्यूज ना हो, तो हम सिर्फ एक पैरामीटर ले रहे हैं कि वी हैव 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, ये क्लासिफिकेशन है. ओके, और आपके पास सफिशिएंट मनी है कि आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3
बेडरूम। ठीक है, तो जो प्रीवियस डेटा अवेलेबल है उस बेस पे हम उसका रेट लगाते हैं कि भाई हाँ अभी कौन सा टाइम चल रहा है, वेदर का हो सकता है। हाँ, लोकेशंस को हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, तो थोड़ा हमें वेरी करना पड़ेगा। तो लोकेशन भी चेंज करें और देखें कि कहीं एक ऐसा हाउस है 2 बेडरूम, ओके, जो आपकी फैमिली के लिए सफिशिएंट है, जिसके आसपास आपका हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जहाँ से नज़दीक है, जहाँ से स्कूल है, और ग्रोसरी और मार्केट भी आपके आसपास है। ठीक है, और एक 2 बेडरूम ऐसा है जो थोड़ा सा इससे दूर है, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? बट ऑब्वियस है कि आप नियर अबाउट प्रेफर करोगे, बट मे बी वहाँ एक पैरामीटर और दूसरा हो सकता है कि जो दूसरा वाला दूर है बट वो आपके गांव से या आपके बेस जहाँ है आपका वहाँ से पास में हो, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सही है। सो बेस्ड ऑन दी दोज पैरामीटर्स आपके पास एक डेटा अवेलेबल है और उसके हिसाब से रेट है मार्केट में। ठीक है, अब ये मशीन को सिखाना है, तो मशीन को ये डेटा हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, मशीन इसको रीड करेगा। ठीक है, तो कोई मेथड होना चाहिए ना उसको सीखने के लिए, तो हमने उसको एक मेथड दिया थ्रू दिस रिग्रेशन, और वो अपने आप इसको ऑप्ट करेगा, वो उसको अपने आप परफॉर्म करेगा। हो सकता है सपोज आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ कनेक्टेड हैं, 20 अराउंड 25 जितने भी स्टूडेंट्स, अगर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा उसमें पूछूंगा कि ये वाई, ये आपको दिख रहा होगा दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे एक्स क्या लिखा है, रॉ मटेरियल रखा है, वाई को प्रोडक्ट सेल रखा है, एक्स को हम 2 बेडरूम 1 बेडरूम इस तरह से टाइप ऑफ हाउस ले सकते हैं, और वाई को हाउस प्राइस ले सकते हैं, और ये डेटा हमारा प्रीवियसली अवेलेबल है। बेस्ड ऑन दैट हम एक यहाँ पे इसको लर्निंग मेथड देंगे, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन हम बोल रहे हैं। लीस्ट स्क्वायर क्या है, डिफरेंस निकाला, स्पैन निकालेंगे और सम कर देंगे, और जो मिनिमम आएगा लीस्ट आएगा, तो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इसे बोलेंगे इस लाइन के लिए। ठीक है, तो जो हमें आंसर आएगा उसके थ्रू हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए, सपोज नेक्स्ट एक्स क्या है 10, जो कि इसमें नहीं है, तो हम किसी अनसीन या जो कमिंग वैल्यू है उसके लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं। दैट इज रिग्रेशन। सो रिग्रेशन इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर प्रिडिक्टिंग। और ये प्रिडिक्शन कौन सीखेगा, मशीन सीखेगी। तो रिग्रेशन किस पे अप्लाई हो रहा है, रिग्रेशन क्या है, मशीन लर्निंग में, रिग्रेशन मशीन लर्निंग। ठीक है, अब कुछ समझ में आया, पहले से क्लियर हुआ? और चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अविनाश, आपने पहले का था फिर से बताया, तो मैंने फिर से तो बताया, अगर अभी क्लियर नहीं है तो एक बार अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसको। दिव्या, एनी अदर? देखिए देयर इज सम टाइम डिले बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क, ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम और नेटवर्क इशू, देयर मे बी सम few seconds it will delay, ओके, लेकिन फिर भी आप तक वॉइस इन कंटिन्यूएशन आ रहा होगा, तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर करें। गुड, दिव्या इज रिस्पॉन्सिंग। एनी अदर हु हैज सम प्रॉब्लम विद दिस कॉन्सेप्ट? बिकॉज अच्छा, डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आकाश। बेटा क्या करना है, आपके पास 2 पॉइंट अभी हम समझाते हैं इसको, और कोई किसी को, अब इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सारे क्वेश्चन इसमें लिख दो चैट बॉक्स में, ताकि मैं फिर इसको स्क्रीन फुल कर दूँ। किसी और को कोई दिक्कत, एनीबॉडी इज हु हैव सम प्रॉब्लम विद दिस? सी इज मैथमेटिकल, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मैथमेटिकल एंड वेरी इजी। मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंस क्या है। और कुछ इसमें किसी को? अदरवाइज इसके बाद में आपसे ये रिग्रेशन जैसे कंप्लीट होगा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा रिग्रेशन पे, तो जो भी क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करना है जो सामने लिखा है। ठीक है, चलो, और कोई नहीं बता रहा तो आई विल स्टार्ट। तो ये एक स्क्रीन पे आपका रिग्रेशन आ रहा होगा, y और y1 लिखा हुआ है, दिख रहा है ना बेटा आकाश?
अभी फुल स्क्रीन नहीं है, बट फिर भी आपको दिख रहा होगा। यस सर, ओके। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, ये पॉइंट, और y लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट कोई होगा y1। सो यू हैव 2 पॉइंट्स y एंड y1, ठीक है। ये पॉइंट और इस लाइन का कोई एक पॉइंट यहाँ पे y1, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू, माइनस करना है जो भी इसमें से बड़ी, हम डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस मीन्स होता है कि कोई जो बड़ी वैल्यू है इससे छोटे को माइनस कर देंगे। सो y1 माइनस y और y माइनस y1, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है। जो भी बड़ी वैल्यू है, मान लो y1 है 10 और y है 5, तो 10 माइनस 5, 5, ओके। इसी तरह से आपको क्या करना है, जो बाकी पॉइंट है y1, ये यहाँ पे y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y। सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट y और लाइन का ये पॉइंट y, यहाँ पे y1 और ये y। सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट, तो हर एक पॉइंट के लिए आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक हम यहाँ पे इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और ये जहाँ जिस पॉइंट को यहाँ पे टच करेगा वो y1 हो जाएगा और ये y। तो ये y है और ये y1 यहाँ। तो y1 और y के बीच में डिफरेंस, यानी हर एक पॉइंट, 2 पॉइंट के लाइन के पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। इन डिफरेंस का जब डिफरेंस निकल आएगा तो हर एक डिफरेंस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। और जब स्क्वायर आ जाए तो उन सब स्क्वायर्स को अलग अलग, देखो यहाँ भी स्क्वायर निकलेगा इसके डिफरेंस का, इस वाले पॉइंट के डिफरेंस का, ये पॉइंट। अब सपोज ये पॉइंट यहाँ पे लाइन पे ही है, तो क्या डिफरेंस आएगा, 0, है ना। ये लाइन पे ही पॉइंट है, देखो ये पॉइंट और लाइन के उस पॉइंट को जिसपे ये परपेंडिकुलर इम्पोज करेगा, अब 0 आएगा। तो 0 स्क्वायर नथिंग, ये पॉइंट लाइन का परपेंडिकुलर पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस स्क्वायर। सो फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ डिफरेंस फॉर ईच पॉइंट, ये जो जितने भी आपको दिए हुए हैं। तो आपके पास 10 डिफरेंस आएंगे, यहाँ पे 10 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट्स है, आपको 10 पॉइंट्स के डिफरेंस आएंगे, 10 डिफरेंसेस। और हर डिफरेंस का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 10 स्क्वायर डिफरेंस, स्क्वायर करेंगे हर डिफरेंस का, और उसके बाद सबको क्या करना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर। अभी आकाश बेटा आप डिफरेंस वाला समझ में आया क्या करना है? इन चैट बॉक्स यू कैन रिप्लाई। I am waiting, beta. It is clear? Yes, okay. So for इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपस में पहले डिस्कस करेंगे रेगुलेशन के लिए। तो हम इसका स्टॉप कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको x और y लिखना है। x 0 1 2 3 4 है, y क्या है, 0 जब x है तो y is 2, at x 1 value of y is 3, at 2 x at 2 y will be 5, at x equal to 3 y should be 4, when x equal to 4 your y value, your product sale is 6, like this, okay। और आपको क्या फॉलो करना है, you have to find least square regression line, so that means you have to find line x y is given, you have to find out what, a and b, you have to use this method, least square regression। least square क्या, जो अभी आपको मैंने डिस्क्राइब किया है, डिफरेंस निकालना है, स्क्वायर निकालना है और सबका सम कर देना है। और ये कई लाइनें बनेंगी फॉर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, यहाँ पे x 1 रखना है, y इक्वल टू 3 रखना है। तो इस तरह से ये कई इक्वेशंस बन जाएंगी। और फिर आपको a और b, ये a और b क्या होगा, ये a और b इसमें चेक किया जाएगा, a और b की वैल्यू चेक की जाएगी, बार बार a और b की वैल्यू रखी जाएगी, और जिसपे सम मिनिमम होगा वो a और b सेलेक्ट किया जाएगा। अभी इसको लिख लीजिए, हम इसको करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a और b, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप इसको लिख लीजिए। आई थिंक आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ओके।
So now हाँ, अब मुझे कोई क्वेश्चन हो, सबसे पहले मैं आपको चांस दे रहा हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज आप क्वेश्चन के आंसर देंगे, गलत या सही कुछ भी हो सकता है। ओके, आप क्वेश्चन के आंसर देंगे, रिप्लाई करेंगे, वो गलत या सही भी हो सकते हैं, बट डरे नहीं, hesitate नहीं हो, because it is online mode and it is very difficult to see your expressions, to see your momentum. Just I am assuming that you are trying to understand. ओके, और इसलिए मैं बार बार आपसे प्रोवोक कर रहा हूँ ताकि आप पूछें, है ना बेटा? तो आप ठीक है, आप अब मुझसे पूछना है, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए और पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो। मैंने अभी तक आपको एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग बताया है और रिग्रेशन बताया है। बाकी मैंने पॉइंट आउट कराए थे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिकमेंडेशन एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जनरलाइजेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, उनके बारे में नहीं बताया, सिर्फ रिग्रेशन के बारे में बताया है। और अब क्वेश्चन एक करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी को डाउट हो, व्हाट इज रिग्रेशन, व्हाई वी से दिस प्रिडिक्शन, और ये लाइन का क्या है, प्रिडिक्शन का चक्कर क्या है, और ये मशीन लर्निंग कैसे हो गया, because you should be very clear, machine learning is what it is, learning nature from experience or from data। और ज़रूरी नहीं है, जैसे ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन कई बार जब इससे एक्सपीरियंस नहीं होता है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फिर भी उसको एक्ट करना पड़ता है। ये क्या है, मशीन है, मशीन शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। और ये एक ऐसा नेचर है कि मशीन के लिए भी उस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो उसमें मशीन क्या करे। सो दिस इज द लर्निंग, मशीन लर्निंग। ओके, और उसके लिए रिग्रेशन क्या क्या कर रहा है, रिग्रेशन को जैसे हमने कहा प्रिडिक्शन है, उसका एक मेथड बता दिया, लाइन ड्रॉ करके या फिटिंग लाइन, जो पहले अवेलेबल डेटा था उसके बेस पे हमने एक ऐसा लर्निंग किया कि अगर ये लाइन इस तरह से बने कि ये एक मेथड है तो हमारा जो प्रिडिक्शन है वो अच्छा रहता है हमेशा, वो सीखती है मशीन, वो है रिग्रेशन या प्रिडिक्शन या लाइन ड्राइंग। आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज मैं पूछूं? तो सबको समझ में आ गया, इसका मतलब तो यही है, इफ़ यू आर नॉट आस्किंग। और मैं चैट बॉक्स भी देख ले रहा हूँ, तो इफ़ यू एनी वन ऑफ यू वांट्स टू राइट इन चैट बॉक्स कि सर मेरे से मत पूछना, और देखो सर मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया सर मेरे से मत पूछना, तो ऐसा कोई है तो बोल दो भाई, डरना नहीं है। नहीं, ऐसा भी कोई नहीं है, सारे बहादुर है। वेरी गुड, तो ठीक है, फिर आप चांस दे रहे हो, मैं ले रहा हूँ। नितिन बेटा, अपनी माइक ऑन ऑन करो और बताओ। हेलो नितिन, और ये अटेंडेंस भी मान लूंगा मैं, अगर आप नहीं इसका रिस्पॉन्स करोगे तो एब्सेंट हो जाओगे। नितिन, पहले तो आप बताओ किस ईयर के हो? नितिन, अभिनव, गुड। आपसे मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अभिनव यादव, गुड। बट आपको सोचना चाहिए, आई एम टेलिंग नंबर ऑफ टाइम्स, टेल मी आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग, आपको बोलना चाहिए ना, बट आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू यू। नितिन, अब्सेंट कर दिया जाए आपको? अटेंडेंस के लिए वैसे भी आप कितना 20-22 लोग आते हो, वो भी अटेंडेंस के लिए तो नहीं बनेगा ना। हर्षित श्रीवास्तव, हर्षित, हर्षित,
ये भी नहीं बात करेगा, कि बात ही नहीं करना चाहते, सब नाराज हैं उससे। अदिति, हेलो। हाँ बेटा, यस सर। समझ में आया कुछ? यस सर, नॉट ऑल बट हाँ प्रॉब्लम समझ में आया सर। अच्छा अच्छा, ये जो सर बिकॉज इसके प्रीवियस की क्लास मैंने नहीं की थी, आज मैं मतलब कर रही हूँ इसकी क्लास। कोई बात नहीं, जो भी आज जितना बताया है उसमें कुछ समझ में आया? यस सर। अच्छा, ये रिग्रेशन प्रिडिक्शन होता है, ये समझ में आया किस तरह प्रिडिक्ट हो रहा है? यस सर। अगर कोई कहेगा कि कुछ डेटा आपके पास है, एक क्वेश्चन इस पे करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैथमेटिकली कैसे हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बट नॉर्मली रिग्रेशन जैसे बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या प्रिडिक्शन है, ठीक है? यस सर। क्या ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड समझ में आ गया किस तरह से? यस सर, ये क्या होता है कि रिग्रेशन जो मतलब प्रेडिक्शन के मतलब प्रेडिक्शन मीन्स कि हमारा जो नया प्रोडक्ट होता है वो प्रीवियस डेटा पे मतलब बेस पे होता है कि मतलब जो हमारा प्रीवियस डेटा जो होता है उसके बेस पे हम लोग जो नया हमारा प्रोडक्ट है हाँ, उसको हम लोग मतलब क्लियर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मतलब प्रिडिक्ट उसके कर बाद सकते हैं कि उसको इसका प्रेडिक्ट कर सेलिंग सकते कैसी रहेगी, इसका रेट हैं। क्या यस सर। होना चाहिए, है ना? यस तो सर। मशीन के लिए ये थोड़ा सा इजी रहेगा लर्न करना, तो ये मशीन लर्निंग आ जाएगी। रिग्रेशन क्या है एक्चुअली में? मशीन लर्निंग है, यस ठीक है? सर। मशीन लर्निंग तो अप्रोच है, रिग्रेशन एक अप्रोच है जो मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है, वो किस तरह का मशीन लर्निंग कर रहा है, प्रिडिक्शन का काम कर रहा है। एक होता है रिकमेंडेशन, जैसे बोला था मैंने, प्रेडिक्शन कर। है ना? ये क्या कर रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है ना? यस ये सर। मूवी आने वाली है, इस मूवी कैसी होगी मूवी, तो वो मूवी प्रिडिक्ट की जाती है, मूवी कैसी होगी, कैसे ऑनलाइन जो उसका रिव्यू होता है, रिव्यू के जो लैंग्वेज होती है, उन लैंग्वेज को, उनके वर्डिंग को पढ़ा जाता है। अगर सपोज करो अभी कोई लिख दे, आप ही से बोलता है अच्छा ये बहुत अच्छा है, और एक ऐसे बोलता है अच्छा ये बहुत अच्छा है, तो मे बी ये अच्छा आपके अच्छे के लिए ना कहा गया हो, है? कई बार कहते हैं ना अच्छा, बट ठीक नहीं है, जो आगे लगा देते हैं, है तो बढ़िया, लेकिन ये लेकिन लग गया। तो यस इसी सर। तरह से आप ऑनलाइन लिखते हैं, तो ये राइटिंग जो नेचर है इसे एनएलपी बोलते हैं, है ना? नेचुरल प्रोसेस, एनपीएल, नेचुरल प्रोसेस लैंग्वेजेस। इसमें जो हम राइटिंग करते हैं, जो टेक्स्ट लिखते हैं, उसके उसको बिहेवियर को चेक करते हैं, उससे रीड करते हैं, तो इसी तरह से हम रिकमेंडेशन करते हैं, ठीक है? अब सर सपोज क्या करो, बोलते हैं राइटिंग को? किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या पूछे बेटा? रिकमेंडेशन, सर आपने अभी एनपीएल। बोला ना सर कि राइटिंग को हम लोग बोलते हैं। सर राइटिंग जो टेक्स्ट लिखते हैं ना, हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, या ये जो भी सर उसको। स्टेटमेंट लिखते हैं, या किसी को चैट करते हैं, या ब्लॉग में लिखते हैं, या ये ट्विटर पे लिखते हैं, या व्हाट्सएप में लिखते हैं, तो जो टेक्स्ट होते हैं इनके बिहेवियर को, जो राइटिंग बिहेवियर है या उसमें जो वर्डिंग है उसको ओके ओके सीखता है सर। मशीन, उसको भी चेक करता है। इमेजेस को तो देखता है, वो रीड करता है, और जो ये लिखते हैं इनके पैटर्न से आपके बिहेवियर को भी चेक किया जा सकता है कि मशीन आपके, आप जिस पे बैठे हैं, आपने जो लिखा है, आपने लॉगिन किया होगा किसी नाम से, अगली बार उसी किसी दूसरे मशीन पे उसी अकाउंट से उसे लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करिए, तब भी आपकी जो वो टाइपिंग नेचर है उसकी हिस्ट्री में रहता है, या फिर वो उससे सीख चुका होता है, तो उस आईडी के लिए वो क्या करता है, सेम टाइप का वो जो आप पसंद है उस चीज, उस तरह की एडवर्टाइजमेंट, उस तरह की चीजें आपके सामने आने लगती हैं जब भी आप लॉगिन करते हैं। तो ये सब यस सर। रिसर्च है, और ये सब मशीन लर्निंग में आ रहा है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग में। तो सबसे पहले मैंने मशीन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग आपको क्लियर किया था। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, मैं नहीं सोचता 100% हो गया हो। और ये भी आपको यस रिग्रेशन सर क्या है, थोड़ा मशीन बहुत। लर्निंग का एक अप्रोच है, मैंने कहा ना मशीन लर्निंग इज एन अप्रोच, सो रिग्रेशन इज एन अप्रोच दैट यस सर। दैट सेट्स मशीन लर्निंग। और उसके लिए हमने वो मेथड लीस्ट स्क्वायर डिफरेंस के थ्रू निकालेंगे। ओके दिति, गुड। ओके सर, थैंक यू इसके सर। अब दूसरा है, कौन बताएगा? आयुषी, Yes. ये हमारे सेकेंड ईयर की बहुत होनहार बच्ची है। हाँ, बढ़िया है। मेरी वॉइस आ रही है आपको? Yes, sir. पूछिए. हाँ, गुड।
जो अभी बच्चे ने पूछा था कि ये लीस्ट स्क्वायर या डिफरेंस, ये आपको तो क्लियर हो ही गया होगा क्या करना है उसमें। अरे सर, जो आपने क्वेश्चन बताई थी ना सर, उसके बेसिस पे मुझे इतना समझ में आया कि y की वैल्यू जो निकालते हैं वो प्रीवियस डेटा x की वैल्यू पर डिपेंड करके इक्वेशंस फॉर्म करके a और b के फॉर्म में मतलब ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, कुछ ऐसा। अच्छा ठीक है, अभी अभी क्वेश्चन जब देखा तो उसमें x और y दिए हुए थे। ठीक है, अभी तुम्हें से बात Yes, कर रहा sir. हूँ, कुछ देर तुमसे बात करूंगा, बाकी लोग अभी। अदिति बेटा आप माइक जो है ऑफ कर लो। अदिति, ओके सर। अदिति गुड। तो आयुषी, there is a number of x and y. Yes. X is there respect to that x, y is also there. Okay, so I think 5x and Yes, 5 y was there. So it is only terminology that x is a variable which is independent. वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो 0 1 2 3 4, but y is calculated based on the equation because mx plus c, और जो हमने यहाँ पे लिख रखा है a1 plus a2 x ऐसे करके। लेकिन हमारे पास तो x और y दोनों हैं। ठीक है, फाइव सैंपल्स हैं हमारे पास। सैंपल क्या मतलब है? एक्सपेरिमेंट है, आप समझ Yes, sir. इसको ध्यान से समझिए। जो हमारे पास एक्स वाई क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग में सैंपल या फिर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका वैल्यू हो गया सैंपल क्या है, x1 के रिस्पेक्ट में y1, x2 के रिस्पेक्ट में y2, x3 के रिस्पेक्ट में y3, x4, y4, x5, y5। आपको x कौन कौन से दिए थे अभी क्वेश्चन में? आपने अगर नोट डाउन किया होगा सब लोगों ने, 0 1 2 3 4 थे x। 0 1 2 3 4 है ना, ये सीक्वेंस में था। और y जो है वो आपका डिफरेंट था शायद, जो भी है। 2 3 5 4 6। ओके, तो ये क्या है? ये Yes, आपको sir. बताया जा रहा है कि x ये है और आपका y ये आ रहा है। आपका x ये है और y ये होगा, ये क्लियर पहले से पता है आपको। इनपुट पता है, आपको आउटपुट पता है। दैट मीन्स आपको प्रीवियस का पता है। ओके, सभी लोग समझे इस चीज को। Yes. सॉरी, कि जो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक्चुअली एक्सपीरियंस डेटा है, यानी प्रीवियस डेटा है। तो आपको पता है ये इनपुट था तब ये आउटपुट आया था, फिर ये दूसरा इनपुट था उस समय ये आउटपुट आया था। तो आपका ये हाउस था तो उस समय इसका हाउस प्राइस ये था। आपका इस लोकेलिटी का ये 4 बेड का 3 बेड का ये हाउस था, उसका ये प्राइस था। तो ये सैंपल्स हैं आपके पास। अब क्या करना है एक्चुअली में, आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि नेक्स्ट अभी कोई नया एक बिल्डिंग बना, उसका एक कोई 3 बेडरूम का प्राइस क्या रखना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो एक जो बिजनेसमैन है जो उसको सेल कर रहा है उसके प्रोस्पेक्टिव में, या फिर जो दूसरा जो उसे बाई करने जा रहा है उसके लिए भी, दोनों के लिए एप्लीकेशन बन सकती है कि इस हाउस जो नया बिल्डिंग बनी इसमें जो हाउस है 3 बेडरूम के डिफरेंट इस लोकेशन में है, इस मटेरियल के बने हैं, इस डायरेक्शन में है, तो इनका प्राइस क्या रखना चाहिए। तो एक प्रिडिक्शन आ गया। तो प्रीवियस सैंपल आपके पास है, आपको प्रिडिक्ट करना है। कैसे करोगे? आपको सिर्फ अगर a और b पता कर लो, a1 और a2 पता कर लो, या m प्लस जो आपके पास लाइन की इक्वेशन होती है, तो आप नेक्स्ट x के लिए y, अगर आपके a और b इस तरह के हैं जो सीख गए हैं, a और b इस तरह के हैं जो न्यू x के लिए न्यू y जनरेट कर सके, तो क्या हो जाएगा, ये मशीन लर्निंग हो जाएगी। ये एक अप्रोच हो जाएगा जो लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। समझ में आया बेटा? Yes, sir. अच्छा, अभी आपसे सिर्फ ये पूछना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। So machine learning is the approach, while deep learning is a set of instruction which we give to do machine their work. वेरी गुड। Deep learning is a set of instruction. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मत कहो, सेट ऑफ टेक्निक ही बोलो, जो बोला है वो सही रहेगा। सेट ऑफ टेक्निक ही बोलो उसको, Set है ना? of technique. हाँ, ओके गुड। Yes, sir. हाँ, स्विच ऑफ कर दो उसको। कात्यायनी, Thank you, sir. ओके ऑफ कर लो। कात्यायनी, आर यू देयर? Yes, sir. गुड। आर्टिफिशियल, क्या उसका मेन पॉइंट मैंने क्या बताया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ
Sir, learn something. ओके Sir, हाँ हाँ it is a broad approach. वेरी गुड कोई एग्जांपल दे सकते हो Example. अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल मतलब हिंट देता हूँ आप बताओ इसमें से क्या होगा अभी Yes, sir. पर्सन आइडेंटिफिकेशन है ठीक है और वो आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी डेटाबेस में उसका सैंपल है और जब भी वो कैमरे के सामने आएगा सपोज आप अपने इंस्टीट्यूट में ही एंट्री कर रहे हैं ओके सो यू आर गोइंग टू अटेंड योर क्लास आईआईटी अयोध्या ओके then when you entered into Yes, sir. the place where the camera is recognizing you because your data is already in database so you are Yes, sir. again recognized that yes you are the student of this okay उसने एक पर्सन आइडेंटिफाई किया Yes, sir. क्या हो गया ये क्या हो गया ये हो गया पर्सन आइडेंटिफिकेशन या फिर आप इसे कह लीजिए रिकॉग्निशन कह लीजिए सिंपल वर्ड में Yes, ओके sir. और एक ये भी बता दे साथ में ये भी बता दे कि यस today you are feeling well today your behavior is not normal तो इसमें दोनों में डिफरेंस Yes, sir. क्लियर कर सकते हो कि एक है केवल आपको आइडेंटिफाई कर रहा है अच्छा या ये स्टूडेंट है या ये एक ह्यूमन ये रिकॉग्निशन है जस्ट रिकॉग्निशन और एक अदर है वो भी बता रहा है साथ में कि यू आर सैड यू आर ओके योर नेचर योर एक्सप्रेशन आल्सो कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट वाले केस में हम बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निक नहीं लगा रहे हैं हम उसको बस केवल ये बता रहे हैं कि ये Yes, sir. तो ये इन दोनों को कैसे बताओगे क्या है कौन सा क्या है अगर मैं आपको चांस दूं कि एआई कौन सा है और मशीन लर्निंग कौन सा है Sir, I think second वाला AI के थ्रू होगा. एआई के थ्रू होगा जिसमें वो ये भी Sir, बता रहा है कि behavior को behavior और क्या सब कुछ को जज करेंगे. ओके Yes, sir. अच्छा अभी ये ऑफ कर लेना अपना माइक और अभी मैं किसी ऐसे दूसरे से ही क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर भी ध्यान से सुनिएगा ठीक है Okay, sir. नीलम यस सर हाँ ये क्वेश्चन सुना ना अभी यस सर हाँ तो क्या तुम्हें क्या लगता है कौन सा एआई में आना चाहिए कौन सा मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है बट है डिफरेंस एक केवल रिकॉग्नाइज कर रहा है उसके बारे में वो टेक्निक या कौन सा क्या टेक्निक लगा है उसकी बात नहीं कर रहा और दूसरा ये बता रहा है कि आपको बिहेवियर ये है आपका बिहेवियर ये नहीं है तो हो सकता है टेक्निक उसने कोई लगाई हो कोई टेक्निक की सर बात एक कर रहे हो हाँ प्लीज को रिपीट कर देंगे आप अब पहले क्या समझा था पहले मुझे ये बताओ जो पहले डिस्कशन में तुम्हें समझ में आया था वो बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है सर सर इट गिव्स वर्क लाइक सम इंटेलिजेंसी अच्छा और मशीन लर्निंग सर एक अप्रोच है देखिए है बहुत that इजी makes लेकिन capable ये of इसका एग्जांपल देने में या इसको learning from experience. हाँ अच्छा सिंपल सा बताओ अच्छा ये जो रोबोटिक्स है वो एआई है कि नहीं है ओके ऑटोनोमस व्हीकल जो चलाते हैं या ऑटोनोमस व्हीकल है जो ऑटोमेटिकली ड्राइविंग है ये क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि नहीं बताओ है कि नहीं है जस्ट यस और नो है कि नहीं है अच्छा मैं कहूँ कि मशीन लर्निंग और सर इन दोनों के सबसेट हैं एआई के तब क्या बोलोगे सर है क्योंकि बेटा आप लोग थर्ड ईयर में हो है ना थर्ड ईयर पास आउट हो गया होगा एक्चुअली अब तो फिर में आ जाओगे ना बताओ बताओ बताओ
AI is a broad concept, but it is also superset. Subset मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और सबसेट, ये उससे छोटे हैं, उसके अंदर है। AI के अंदर मशीन Yes, लर्निंग, sir. मशीन लर्निंग के साथ अंदर डीप लर्निंग है। ये अप्रोच वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मशीन लर्निंग एक अप्रोच है और ये एक टेक्निक है, डीप लर्निंग एक टेक्निक है। मशीन लर्निंग के लिए कई तरीके, कई अप्रोचेस हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है मशीन से रिलेटेड। तो मैंने कहा कि आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो आपका एक कैमरा, एक सिस्टम जिसमें डेटाबेस भी होगा, उसमें आपका डेटा सैंपल भी होगा। रिकॉग्निशन के लिए कैमरे ने आपको रिकॉग्नाइज किया, सेंसर ने, और उसके बाद मैच किया, तो दैट मीन्स इट इज नॉर्मली एआई तो इसमें आ ही गया। ओके, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ ही गया, बिकॉज ये तो हर मशीन से रिलेटेड है, जहाँ भी स्मार्टनेस होगी। और जैसे ही आप इसमें कोई अप्रोच लगा दोगे कि अच्छा भाई इसमें हम चेक क्या करेंगे, इसमें एक अप्रोच करते हैं ना, इसको फाइंड आउट करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करने का अप्रोच है, साथ में इसका बिहेवियर भी चेक कर लेते हैं, साथ में इसको देख लेते हैं ये इसका आज मेंटल किस तरह का मूविंग एक्शन है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इसका जो एक्शन है वो अच्छा है कि नहीं है। तो उसके बेस पे हम उसको चेक कर सकते हैं, हाँ ही इज और सी इज फीलिंग बेटर और नॉट। तो वो क्या होगा, ये डीप में जा रहे हैं, टेक्निक पे बातें करने लगेंगे। तो एक अप्रोच आएगी, जहाँ अप्रोच की बात होगी वहाँ पे मशीन लर्निंग बोल देंगे, जहाँ पे टेक्निक की बात आएगी वहाँ डीप लर्निंग बोल देंगे। तो बहुत ही फाइन लाइन है टू डिफरेंशिएट। एआई तो है ही, हर चीज़ मशीन से रिलेटेड, जो भी मशीन काम करेगी वो एआई तो होगी होगी। अब रोबोटिक्स हो गया, ऑटोनोमस ड्राइविंग हो गई, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी अब तो बहुत सारा कुछ यूज़ होने लगा है, और बहुत सारी रियल, इवन रियल टाइम पे आप काम करने लगे हैं। सपोज अभी जो आप लोग कौन सा एलेक्सा वो यूज़ करते हैं, ये क्या है, ये ब्रॉड सेंस में सब कुछ एआई है। तो एआई इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। जब भी मशीन से रिलेटेड या इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ बताएंगे तो क्या होगा, एआई तो इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जब हम उसमें कुछ अप्रोचेस, पैटर्न मैचिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, कुछ अप्रोच लगाने लगेंगे, देन मशीन लर्निंग लग जाएगी। लेकिन उसमें खासियत क्या होगा कि मशीन खुद सीख रहा होगा, उसे हम सिखाएंगे नहीं, उसे हम ए प्लस बी इक्वल टू समथिंग नहीं बताएंगे, उसे ए प्लस बी बता देंगे, और वो प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है, खुद सीखने लगेगा। ठीक है, और उसके लिए डीप लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारी और टेक्निक्स भी हैं। तो एआई तो लग ही रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि जब हम पूछ रहे हैं कि क्या होगा, तो आपका जब आप कह रहे हो इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है, और उसके बाद मैंने दूसरा भी क्या बोला, इट इज अ सबसेट, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आर सबसेट ऑफ एआई। तो एआई तो होगा ही होगा। अब उस एआई में मशीन लर्निंग हो सकता है, उस एआई में डीप लर्निंग हो सकता है या नहीं, ये पार्ट हो सकता है। बट अगर मशीन लर्निंग है का वो अप्रोच है, दैट मीन्स एआई तो उसमें है ही, इसमें कोई दूसरे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शिवम बेटा, एनी क्वेरी, यू हैव रेज्ड योर हैंड, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अदरवाइज पूछ सकते हो। दिवेश आपने पूछा शेयरिंग स्क्रीन नॉट विजिबल, बेटा शेयर किया ही नहीं अभी, ध्यान से सुनो आप। फर्स्ट सेकंड मशीन लर्निंग, वेरी गुड अविदो, वेरी गुड। अविदय ने सही आंसर दिया है, बट इसको और जनरलाइज भी में समझ लेना जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट एआई है, वेरी गुड, सेकंड इज अ मशीन लर्निंग, गुड। तो नीलम और कात्यायनी, फर्स्ट और सेकंड दोनों एआई हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही, क्योंकि एआई का केस है। सेकंड को हम चूंकि अप्रोचेस पे ला रहे हैं तो हम उसको मशीन लर्निंग बताएंगे, कैटेगराइज कर सकते हैं। और अगर उसमें भी हमने डीप लर्निंग के टेक्निक्स लगाई या टेक्नोलॉजी यूज़ की, सेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ किया, तो वो क्या हो जाएगा, डीप लर्निंग में चला जाएगा। और भी ढेर सारे हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम मशीन लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लियर रहना चाहिए, दोनों ही मशीन लर्निंग एआई है, दोनों, वन इज मशीन लर्निंग, सेकंड इज डीप लर्निंग, गुड। दोनों ही एआई हैं बेटा, शिवम, दोनों ही एआई हैं। जो भी मशीन से इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्मार्ट वर्क जहाँ भी होगा वो एआई आएगा ही आएगा। तो आप इसको अच्छा जानना हो तो और थोड़ा सा
elaborate करके पढ़िएगा, then you will be in such condition that yes, this is a machine learning, but AI is there. Don't be confused कि AI और machine learning अलग होंगे, और machine learning है तो AI तो है ही। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए, मशीन लर्निंग है तो AI तो होगा ही होगा। ओके अच्छा, सिक्योरिटी ये याद रखिए कि चूंकि सिक्योरिटी से आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये रिग्रेशन जब आप कर रहे हैं ना, रिग्रेशन में आपको याद रखिए, लिख लीजिए, ये एग्जांपल है फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन, we are what we are predicting, we are performing regression. So regression in cyber security example we can give fraud detection. Okay, so write down this way because it's very important. Example in your case, because you are with respect to cyber security fraud detection, it is predicting that this type of activities are in which section, which is categories. This is like fraud, so fraud is detected. Okay, your mail is spamming or not spamming, it's an categorization, तो वो बाद में पढ़ेंगे, बट ये अभी क्या लिखना है आपको, फ्रॉड डिटेक्शन। रिग्रेशन में अगर पूछे साइबर सिक्योरिटी में रिग्रेशन कैसे का एग्जांपल क्या है, प्रिडिक्शन का एग्जांपल, यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट, यू आर गोइंग टू परफॉर्म रिग्रेशन, so what is the example of fraud detection? We are performing we are finding, we are detecting fraud using regression. Okay, अभी क्वेश्चन जल्दी से परफॉर्म कर लेते हैं। अब आपको इसका फॉर्मूला भी दिखा देते हैं, शो करते हैं स्क्रीन। जब आपको वो रिग्रेशन का फॉर्मूला आ जाए तब जरूर बताइएगा, मुझे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन दिस। ओके बेटा, चैट बॉक्स में लिख के बता दो, ये स्क्रीन दिख रही है ना जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है? दिख रही। ओके, तो नेक्स्ट है, अगर हमारे पास आपके पास कोई भी वाई एक ये अभी देखिए, अभी आपको फॉर्मूला दिख रहा है। इफ यू हैव line y equal to ax plus b, if you have a line y equal to ax plus b, okay, then you can find a and b। यहाँ पे कैपिटल A and B लिख दिया है। Are you getting this point? See, you have number of x and y. Your question is this: you have number of x and y, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5। ये क्वेश्चन करना है अभी, ठीक है? रिग्रेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, लेकिन रिग्रेशन के लिए रिग्रेशन कई तरीके से परफॉर्म हो सकता है, उसमें से एक ये आपका क्या है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। क्या करना है हमें, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करके फिर सम निकालना है। इफ सम इज मिनिमम देन ओके, ठीक है? तो आपको और इजी कर रहे हैं, आपको आप कर क्या सकते हो, आप चूंकि आपके पास x और y 5 सैंपल हैं तो आपको 5 इक्वेशंस मिलेंगे, और सब इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b, एक a और एक b परफेक्ट a परफेक्ट b निकालना है, जो सारी इक्वेशंस को फिट बैठता हो। समझे आप क्या करना है? यू हैव नंबर ऑफ x एंड रिस्पेक्टिव विद दिस x देयर आर y, और आपको यू हैव टू फाइंड आउट a एंड b सच दैट that a and b value will fit for all x and y lines। 5 सैंपल है, 5 लाइन बनेंगी और हर एक में a और b सेम रहेगा। आप समझ सकते हो? तो उसके लिए ये फार्मूला बनाया है, नहीं तो फिर वो लंबा एक्सेस है कि वैल्यू पुट करो और ऐसी और a और b की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करो जो सारी 5 इक्वेशंस के लिए फिट बैठता हो। a और b सेम रहेगा, बट x की 0 वैल्यू के लिए y हमेशा उतना ही आए, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y उतना ही आए। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, आपके पास यहाँ पे x है, y है, x है, y है, x के रिस्पेक्ट में y, x के रिस्पेक्ट में y, 4 है तो उसके रिस्पेक्ट में 6। मतलब क्या है, आपको यहाँ पे 0 रखना है x की जगह पे, y क्या आएगा, 2 आएगा। x अगर 1 यहाँ पे आप पुट करोगे तो y कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। x अगर 2, इफ यू आर पुटिंग x 2,
देन y विल बी 5। तो a और b की ऐसी वैल्यू हो कि हम वैल्यू 4 रखें, आए 6, है ना। तो आपको a और b तो पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले x की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू रखोगे, 0 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हो गया 2, तो b इक्वल टू 2। सिंपली यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 3, यहाँ पे 2, ये 5। इस तरह से 5 इक्वेशंस बनेंगी और 5 इक्वेशंस के बाद आपको a और b फाइंड आउट करना है, ऐसा जो इन 5 के लिए काम करे। ऐसा ना हो जाए कि हर एक के लिए अलग हो जाए, आपकी ये वैल्यू आनी ही चाहिए और x a और b। तो उसके लिए या तो कहाँ चला गया, ये रहा, हाँ ये ठीक है, अभी दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. स्क्रीन ऐसा तो नहीं होगी हट गई है? No, sir. ओके, तो आपको पता क्लियर हो गया ना क्या करना है? अब ये आपको ए और बी Yes. फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला है, या तो आप हिट एंड ट्राई करके ए और बी फाइंड करो, या ये फार्मूला लिख लो। ये फार्मूला लिख लो, उसमें आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक्स आई वाई आई। एक्स आई आई का मतलब है x0, x1, x2, x की 5 वैल्यू है, y की 5 वैल्यू है, उनका मल्टीप्लाई x इंटू वाई। फिर क्या है, एक्स आई सम, वाई आई का सम। यहाँ पे क्या है, x इंटू वाई का सम, और यहाँ पे x का सम और y का सम का इंटू। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए और इसको परफॉर्म करना है। सर यहाँ पे n बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट है ना? n, हाँ 5 सैंपल्स है, नंबर ऑफ सैंपल्स, n डेटा पॉइंट्स है ना, यहाँ पे n डेटा पॉइंट्स, n सैंपल्स है, n Yes. एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं इनको, n फीचर्स भी बोलते हैं इनको। इफ यू हैव फीचर, कई बार बोलते हैं ना, यहाँ फीचर है x एंड y, एक जो पेयर है, दिस इज वन फीचर, वन सैंपल, वन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ये प्रोग्रामिंग में अगर आप रिग्रेशन एक्चुअली बनाने जा रहे हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन के थ्रू, तो आपको ये ए और बी को ही कोड करना होगा, सिखाना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमन कैसे सीखता है, आप लोग कैसे सीखते हैं? या आप, अगर आपसे कहा जाए कि ये लाइन ड्रॉ करना है, तो आप क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं ना। लेकिन कोई एक जरूरी नहीं एक फॉर्मूला यूज करें, अभी तो हम एक की बात कर रहे हैं, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, तो दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह मशीन के पास क्या होगा, ढेर सारे मेथड्स होंगे और वो उस समय चेक करेगा, लर्न करेगा कि मुझे कौन सी किस सिचुएशन में कौन सा यूज करना है, दैट इज लर्निंग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये भी तो कोड है, ए और बी भी तो हम कोड ही तो कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं ये करना है। तो अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया है, तो इसका मतलब उसका माइंड थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है कि सर हम भी तो कोड कर रहे हैं, ए और बी उसको बता रहे हैं सीखो, नहीं। उसके पास इस तरह के बहुत सारे मेथड्स होंगे, ए और बी सीखेगा, हो सकता है उसमें कुछ और ट्राई कर दे, उसके पास अगर उसको नॉलेज आती जाएगी तो वो हिट एंड ट्राई करेगा ना। तो ये उसमें जाके मशीन लर्निंग बनेगा। पर अभी क्या कर रहे हैं, अभी उसको एक मेथड बता रहे हैं, बच्चे को ABCD बता रहे हैं, बच्चे को पहले अल्फाबेट बताएंगे, फिर वो अपने आप स्टेटमेंट बनाएगा। तो ये अगर लिख लिया आप लोगों ने तो परफॉर्म करेंगे और इसका आंसर आप हमको भेजेंगे जब भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा इसका आंसर। ए और बी फाइंड आउट करना, जब ए और बी पता चल जाएगा तो आपको न्यू डेटा, आपको पता चल गया ए और बी, तो अगर कोई नया एक्स आएगा, नया एक्स क्या है 10, तो आपको वाई तो मिल ही जाएगा ना। क्लियर है ना? ओके, अभी मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ बेटा, अगर किसी को अभी कोई प्रॉब्लम है तो वो 1 मिनट में पूछ लें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो चैट बॉक्स में, हेलो, चैट बॉक्स में एक एंट्री आई है, सर नेट नहीं चल रहा है, और एक आया है सर निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट होंगे ए और बी के लिए। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन आप लास्ट तक ये पहले निकालिए इसके बेस पे और फिर बताइए वैल्यूज क्या आएंगे। अगर आपने अभी निकाल लिया है देन ओके, गुड। अब जो क्वेश्चन कर रहा है बेटा, हाँ अब ये ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है, ओके नेगेटिव, हाँ गुड, ए इक्वल टू -1.9। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर हम फार्मूला लगा रहे हैं, सभी लोग सोचो, अगर फार्मूला लगा रहे हैं y माइनस y1, ठीक है, माइनस, तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन टू, तो निगेटिव आएगा क्या? मतलब आकाश सिंह जो बेटा पूछ रहे हो, आकाश सिंह, ओके, थोड़ा बताओ मुझे कि निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट होनी चाहिए या आएंगी भी? आकाश, हेलो हाँ बेटा, सर, वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है? यस, डिफरेंस तो निगेटिव, पॉजिटिव ही निगेटिव होगा। क्या, जब हम डिफरेंस निकालेंगे दैट मींस देयर विल बी नो निगेटिव, ओनली डिफरेंस। 5 सपोज 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 इससे मीन्स -2, मैथमेटिकली आप कहेंगे इससे -2, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज 2, ठीक है? इससे डिफरेंस पॉजिटिव हाँ डिफरेंस लेंगे, दैट मीन्स निगेटिव वैल्यू विल नॉट बी, एक्सेप्ट। automatically it will cut it down, no ओके negative value will be coming, okay? ओके हाँ ठीक है, और कोई? तो ये क्वेश्चन तो आपको करना है, ठीक है? और सर फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है। फ्रैक्शन में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में ही आएगा, हेलो क्या दिक्कत है? बस सबको सेटिस्फाई करेगा ना? सर, फ्रैक्शन में है। हाँ कितना आ रहा है? यस सर। सर एक वैल्यू आ रहा है हम्म, 9/10 आ रहा है सर, 0.9। 0.9 आ रहा है ना? ठीक है, यस 0.9 आएगा, क्या दिक्कत है? यहाँ तो 0.9 आ रहा है, तो पॉइंट समथिंग 0.009 आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है, सर। ठीक है? क्योंकि ह्यूमन तो चलो 2-3 पॉइंट के 2-3 प्लेसेस तक देखता है अपनी फिजिबिलिटी के लिए, इजीनेस के लिए, बट मशीन तो और ज़्यादा अच्छा सीख सकता है ना। मशीन इज यस इफ सर। is going to learn, then that means machine will be more accurate, तो बिल्कुल हो सकता है। 0.9 आपका आ रहा है, ए बिल्कुल सही है, 0.9 ही आएगा, और बाकी और आप निकालिएगा। और सर उसका आ रहा है 1.1 आ रहा है, 1.2 आ रहा है बी का value। देख लीजिएगा, 1.2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, यस सर। बाकी सर लोग भी बी की कैलकुलेट करके वही, बताएं। इसमें क्या है कि सर समेशन i इक्वल 1 से n y 0, सर इसका मतलब 20 माइनस 0.9 × 10, हाँ लेकिन 1 बाई 20 एन माइनस पहले सर है ना, 9 हो जाएगा। 1 बाई एन पहले है, तो उससे आप करोगे तो देखो ये कुछ और आएगा। 5 हो गया उसका, 1/5। कोई सर दिक्कत नहीं बेटा, आप 1/5 हो गया करके इधर। इसका आंसर अभी सब लोग डालेंगे ना नए उस पर व्हाट्सएप पे, तो आप करिएगा ना, अभी मत बताइए, ठीक है? अभी ओके मत सर। डिस्कस करो। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको और 1-2 मिनट आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर एंड करेंगे, ठीक है? तो यस सर। तो कुछ चीज़ें आप फिर से लिख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिग्रेशन हो गया, तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज व्हाट? क्लासिफिकेशन। लिख लीजिए, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। आप सभी जानते हैं क्लासिफिकेशन इज अ टास्क ऑफ सेपरेटिंग थिंग्स into different categories. Classification is a separating things into different categories. Okay, classification is a what? Separating things into categories, different categories. ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए।
आप बहुत इजी है. सपोज आपके पास कुछ डेटा सेट है, यू हैव टू कैटेगराइज दैट यस इट इज डॉग, द पिक्चर इज collection of dog and cat, and you have to categorize the picture is in dog category or cat category, or your mails are for filtered spam or non spam. So for if we concern with cyber security task, the spam and non spam is the example. Dog or cat तो is एक normal example हो जाएगा, but in terms of cyber security, spam filtering, separating spams from other messages. Okay, so it is an example in terms of cyber security. That means you are filtering this message is spam or not. So separating the message or mail in one category spam or another category non-spam. So categorize, class, dividing, separating into different categories. So spam is what? It's a type of message. Okay, so it is categorized. This is classification. Okay, तो अभी आज के लिए for today this is okay. And if you have any query, any question regarding this, you can ask. Most welcome. और क्वेश्चन का सॉल्व करना है, और कहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई कुछ नहीं समझ में आया, you can ask me directly through WhatsApp, through mail, through phone. Okay. अभी आप अब तो इस समय कुछ बोल दीजिए. Yes, sir. Good.